اور چلیے اپنی اس خصوصی پیشکش کی شروعات کریں گے۔ لگاتار نیوز 18 اردو اس اہم خبر پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہے۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں مذہبی مقامات کی مسماری کا معاملہ پوری ریاست میں زیر بحث ہے۔ KCR حکومت کی طرف سے کورونا وبا کے اس دور میں ایسے اقدامات پر سوال اٹھنا لازمی بات ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان رہیں گے۔ ان خاص مہمانوں سے ہم آپ کا تعارف کروائیں گے، لیکن پہلے معاملے سے جڑے پہلوؤں کے حوالے سے کچھ اہم تفصیلات آپ کو دیتے ہیں۔ جی ہاں، سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کے انہدام کا معاملہ سپریم کورٹ جا پہنچا ہے۔ حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کے انہدام کے خلاف تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر جیونت ریڈی سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے انہدام کا تقریباً 50% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں حکومت کی طرف سے مساجد توڑنے کا سلسلہ جاری رہنے پر مذہبی، سماجی اور سیاسی گوشوں سے اظہار تشویش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران تمام معاملات میں وقف بورڈ کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لازمی ہیں۔ وقف بورڈ کو عاملہ اختیارات دینے کی پھر سے مانگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ۔ تلنگانہ میں 123 برس قدیم سیکریٹریٹ کے انہدام کی کارروائی پر عدالت نے روک لگا دی ہے، لیکن اس دوران مذہبی مقامات کو مسمار کیے جانے کے عمل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ KCR نے عبادت گاہوں کو گرائے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ اسی جگہ عالیشان عمارتیں بنا کر دینے کا وعدہ کیا ہے، تاہم وزیر اعلیٰ کی طرف سے معذرت خواہی کو ناکافی سمجھا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں وقف بورڈ اور اس سے جڑے لوگوں کا کردار بھی سوالات کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے ہندو انڈورمنٹ کی طرز پر وقف بورڈ کو بھی ایگزیکٹو پاورز دینے کی وکالت کی ہے۔ اسد الدین اویسی نے وقف کمشنریٹ کے قیام کو ناگزیر قرار دیا۔ اسد الدین اویسی کا ماننا ہے کہ وقف بورڈ صدر محمد سلیم نے اپنے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کیا اور انہیں وقف بورڈ چیئرمین کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ باصلاحیت ہاتھوں میں بورڈ کی باغ ڈور دینے پر اسد الدین اویسی نے زور دیا۔ اسد الدین اویسی کے مطابق اگر وقف بورڈ کی قیادت باصلاحیت ہوتی تو ایسے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اسد الدین اویسی نے AK خان، ملک معتصم خان یا کسی دوسرے اہل شخص کو بورڈ کا سربراہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ اسد الدین اویسی نے موجودہ وقف بورڈ کو تحلیل کر کے نیا بورڈ تشکیل دینے کے لیے قانونی کارروائی کرنے کی KCR سے درخواست کی ہے۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں موجود مسمار شدہ مساجد رجسٹرڈ وقف املاک ہیں۔ سرکاری گزٹ ریکارڈز میں بھی دونوں مساجد شامل ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ سیکریٹریٹ میں موجود مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے یقین دہانی کا انہوں نے ایوان میں بھی مطالبہ کیا تھا۔ اور میرے کو کوئی شک نہیں ہے آپ کی نیت کے اوپر، آپ کی گورنمنٹ کی نیت پر، مگر اس ہاؤس میں ایشورنس ہونا چاہیے سر، مسجد اسی جگہ رہے گی، وہیں آباد رہے گی اور وہیں کوئی اس کو یوز کرنے کے لیے روکا نہیں جائے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ سر آپ کی حکومت اور ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ خاص مہمان، چلیے ان سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک معتصم خان صاحب جو کہ ممبر ہیں تلنگانہ وقف بورڈ کے۔ ملک صاحب، بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید نظام الدین صاحب جو کہ ترجمان ہیں TPCC کے۔ دونوں مہمانوں کا استقبال کریں گے، اور ملک معتصم صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی شروعات کرنا چاہیں گے۔ وقف بورڈ اور اس کے موجودہ ذمہ داروں کی لاپرواہی کہیں یا پھر نظر انداز کرنا کہیں، دونوں باتیں لگاتار اس وقت جو ہیں تمام تر گوشوں میں زیر بحث ہیں، کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ سیکریٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد شہید ہو گئی ہیں، وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ ان مساجد کے معاملے میں وہ وقف بورڈ سے رجوع ہوتی اور وقف بورڈ کو اپنے اعتماد میں لیتی، مشورہ کرتی کہ کیا کرنا ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے جو پارٹ ہے وہ پورا نہیں ہو سکا ہے، اور جو مساجد شہید کر دی گئی ہیں یا نقصان پہنچا ہے، ہر 2 صورت میں ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی جگہ پر، اسی پلیس پر
वहां मस्जिद मौजूद रहेगी, अगर नुकसान पहुंचा है तो उसकी मरम्मत की जाएगी, अगर उसको ढा देने की गलती की गई है तो उसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद तामीर होगी। इसके अलावा कोई बात तेलंगाना के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। जी मुतसिम साहब, बिल्कुल होगी, होना चाहिए, ये करना है, तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या बिल्कुल किसी को इत्तला नहीं थी? और सबसे अहम बात यह है कि जब तमाम चीजें प्लान की जा रही थी, जब ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, क्या उस वक्त भी किसी जिम्मेदार को इसकी इत्तला नहीं थी? ये बात खुद एक सवालिया निशान बन गई है कि हम भी ये बार बार पूछ रहे हैं, और हमारी 13 तारीख को वक्फ बोर्ड की मीटिंग है जी। उसमें मेंबरान चेयरमैन से और सीईओ से ये बात पूछेंगे कि उन्होंने अपने दफ्तर का और अपने ऑफिस का और अपनी हैसियत का क्यों ना इस्तेमाल किया, उन्हें खबर क्यों नहीं हुई और वो राब्ते में क्यों नहीं रहे। ये बहुत अहम सवालात है। इसमें हुकूमत की पार्ट से क्या गलती हुई या हमारे वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है उसकी जानिब से क्या गलती हुई, ये सवालात अभी ज़ेर बहस है। 13 तारीख को ये मीटिंग में ये बात ज़ेर बहस आएगी। जी बिल्कुल, तो 13 तारीख की जो मीटिंग है उस पर हमारी भी नज़र रहेगी। यहाँ चूँकि आप भी एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, अक़लियती इदारों की जो हालत ज़ार है वो एक जानिब, लेकिन ऐसे इदारों में क्या आपको नहीं लगता कि नाअहल अफराद जो हैं उनकी मौजूदगी कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है? जो इदारे का अहम मकसद है, इदारे का जो रूह है इदारे की, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होती जा रही है, उस वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात की तायद करता हूं। ये वक्फ बोर्ड हो या उर्दू एकेडमी हो या हज कमेटी हो या रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात हो, उन सब में अब तक की ये रिवायत रही है, आजादी के बाद से अब तक भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने वहां अपने सियासी बेरोजगार लोगों को और अपने सियासी नुमाइंदों ही को वहां मुकर्रर करती आई जी। जबकि होना ये चाहिए कि उम्मत में जो बासलाहियत लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सोशल वर्कर्स हैं, जो समाज में बहुत दिनों से उमूर पर मेहनत कर रहे हैं, जी जी। उनसे इस्तिफादे की कोशिश होनी चाहिए। इन बोर्ड और इन कारपोरेशंस को जो सियासत में जिनको कुछ जगह न मिल सकी, उनको यहाँ जगह देने की ये जो पॉलिसी बिल्कुल हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में आजादी के बाद से होती रही है, ये एक बहुत नुकसानदा बात है। इसमें उम्मत के काबिल एतमाद लोगों को बिल्कुल और उम्मत के जो इदारे हैं, जमातें हैं, तहरीकें हैं, उनसे मुशावरत के बाद इसमें अफराद को इसमें जगह मिलनी चाहिए जी बिल्कुल। और जो कानूनी पहलू है जी, वक्फ बोर्ड को वक्फ कमिश्नरेट में तब्दील करना और उनको जुडिशियल पावर देना, मौजूदा हुकूमत ने ये बात कही है मगर अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है, उसकी तरफ हमको इक़दाम करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को उसके आमेलाना इख्तियारात मिले, जुडिशियल पावर मिले और उसको वक्फ कमिश्नरेट में तब्दील करने की संजीदा कोशिश हो, ये काम अभी बाकी है जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हमारे साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। सैयद निज़ामुद्दीन साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, इतना बड़ा वाक़या हो जाता है और ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह के लगातार मामले हम देखते चले आ रहे हैं। एक जानिब जो रियासत है कोरोना से लड़ रही है, लोग पहले ही परेशान हैं, उस सब के बावजूद अगर मजहबी मुकामात को निशाना बनाया जाएगा तो फिर कांग्रेस की तरफ से अब क्या कुछ इक़दामात? देखिए, तेलंगाना के अंदर जब से टीआरएस हुकूमत आई है, आए दिन जो है ना झूठे वादे किए जा रहे हैं एक के बाद एक, और जो उन्होंने एक करेक्ट टाइम चॉइस किया है। लोग जो है कोरोना वायरस की बीमारी से परेशान हैं, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी से परेशान है, ये तमाम चीजों को लोग जब घरों के अंदर बैठे हुए तो केसीआर हुकूमत ने ये इबादत गाहों को तोड़ने का काम किया है। बहुत शर्मनाक बात है तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए और तेलंगाना की आवाम के लिए खास करके। आप देख रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर जो है ट्रेंड बना है, एक ट्रेंड सा बन गया है कि जो है आए दिन
मस्जिदों को रोड पे मास्टर प्लान की में तोड़ दिया जा रहा है। जब कोई सवाल करते हैं तो पलट के बोल रहे हैं कि हम उससे अच्छी मस्जिद बना के दे देंगे। जी जी। लेकिन ठीक इसी तरह यहाँ पे 7 तारीख और 8 तारीख की रात के अंदर जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसको डेमोलिश करते हुए साथ में उसके ऊपर डेब्रिस गिरी बोल के केसीआर साहब बोल रहे हैं। अगर डेब्रिस गिरी है तो अगर कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है तो इमीडिएटली उसका हिस्से को जो है उसको रिकंस्ट्रक्शन हो, उसका जो भी भरपाई है उसको करना चाहिए। और जो नेग्लिजेंस किया है, जो भी एजेंसी ने इस डेमोलिशन में हिस्सा लिया है, उन एजेंसी के ऊपर 42 ऑफ 1991 के एक्ट के तहत सेडेशन केस बुक होना चाहिए। कल मैंने सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रजिस्टर किया है। जो भी एजेंसी, क्योंकि केसीआर साहब बोल रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है, ये जब केसीआर साहब के इल्म में नहीं है तो तेलंगाना गवर्नमेंट के इल्म में भी नहीं है। और हम जो है गवर्नमेंट के पैसे पे अच्छी से अच्छी मस्जिद बना के देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें वही मस्जिद चाहिए, वहीं पे जहां पे वो मस्जिद जहां भी डैमेज हो गई, जहां भी डेमोलिश हो गई, वहीं पे हमको चाहिए। आज हम लोग गांधी भवन के अंदर एक रेजोल्यूशन भी पास करे हैं कि किसी कीमत में हमें जो मस्जिद जहां थी वहीं पे हमें मस्जिद चाहिए, क्योंकि अल्लाह के घर को चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह का घर जमीन से और आसमान तक दोनों एक ही तरह से वो अल्लाह की इबादत की गाह है। सैयद निजामुद्दीन साहब यहाँ पर एक और बात जानना चाहेंगे। एक्ट भी ये कहता है, निजामुद्दीन साहब, ये कहा जा रहा है कि लाइल्मी के सबब ये हुआ, क्या ये बात आप मानेंगे कि वाकई यहाँ लाइल्मी रही? क्या वाकई पहले से नहीं पता था कि वहाँ पर इस तरह का कोई मजहबी मुकाम मौजूद है? इस बात को किस तरह से आप लेंगे? अगर लाइल्मी की अगर बात है तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के मौजूदगी में जो है टेम्पल को बाज़ाफ्ता हिंदू रिचुअल के तहत उसको निकाला गया, वहां से शिफ्ट करा गया, उसके बाद डेमोलिश किया गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से टेम्पल को जिस तरह से हिंदू रिचुअल के तहत किया, क्या आप मुसलमानों को किसी को सामने रख के वहां की कुरान शरीफ, वहां की जानिमाज, वहां की जो भी जानिमाज वगैरह है, जो किताबें हैं, उसको हटाया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे कंप्लीटली चारों तरफ से पुलिस का पहरा है, कोई भी जो है वहां पे जा नहीं सकते। और केसीआर साहब को खुद बोल रहे कि आई एम सॉरी, यानी आई एम सॉरी बोलने से क्या होने वाला, हमसे गलती हो गई, एक मेरे को इसका इल्म नहीं था और जो है ये डेमोलिश हो गया, मैं उससे अच्छी मस्जिद गवर्नमेंट के पैसे में बना के दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तोड़ दे और जो है मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है केसीआर साहब आपके इल्म में नहीं है, गवर्नमेंट के इल्म में नहीं है, जो कोई भी एजेंसी वहां पर उसको डेमोलिश किए उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कम से कम कार्रवाई जरूरी है ताकि आइंदा इस तरह की चीजें सामने ना आए। हमारे साथ मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि लगातार इस अहम मामले पर सख्त रुख इनका हमें देखने को आ रहा है। अमजदुल्ला खान साहब, एक बार फिर से न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। कल आपकी तरफ से एक सख्त कदम उठाया गया है, किस तरह से आगे जो है इस मामले को लिया जाएगा ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश ना आए? देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं तो सबसे पहले न्यूज़ नेटवर्क 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस सुलगते हुए मसले को अवाम के दरमियान में लाने के लिए, क्योंकि मुसलसिल न्यूज़ नेटवर्क 18 की तरफ से ही इस मसले को जिंदा रखा गया है। बाकी कहीं भी आप कोई भी चैनल पे इस मसले को नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज जो है कि अब आपके दरमियान में जो है कांग्रेस के भी तर्जुमान हैं और हमारे मलिक मोहतशिम अली खान साहब जो जमात इस्लामी के अमीर रह चुके हैं 2 मरतबा और मरकज में अहम रोल अदा करते हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, ये भी आपके साथ में हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बतलाऊंगा कि जमात इस्लामी हिंद जो है कांग्रेस की भी तायद की थी, अब मौजूदा टीआरएस की भी तायद में है। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत रहो, कांग्रेस की हुकूमत रहो या आपके टीआरएस पार्टी की हुकूमत रहो, तो आज जो है हमारे कांग्रेस के एक सीनियर साबिका वजीर भी मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे, शबीर अली साहब के मस्जिद को तोड़ दिए। तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि सेक्रेटेरिएट के दामन में जो है ये मस्जिद हाशमी को जो शहीद किया गया था, पहली मरतबा तेलुगु देशम के पीरियड में जब चंद्रबाबू नायडू थे, जब शहीद किया गया था। उसके बाद में कांग्रेस के दौर में मस्जिद उमर फारूक जो एयरपोर्ट पे जहाँ लैंडिंग है, आज जो कांग्रेस के तर्जुमान आकर बोल रहे हैं कि मस्जिद टूट गई, या कांग्रेस के कायदीन बोल रहे हैं मस्जिद टूट गई, तो इनके भी दौर में कई मसाजिद को मिसमार किया गया, जिसका जिंदा मिसाल है मस्जिद उमर फारूक। और अब जो है टीआरएस की दौर में जो है ये 2 मस्जिद का मसला नहीं है। टीआरएस जब से इख्तिदार पर आई है, आपको मैंने कई मिसालें दी कल
जी जी कि सबसे पहले जो है खम्मम में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तकरीबन 100 साल पुरानी एक मस्जिद को ये तोड़ दिए कि फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद है बोल के, जबकि दूसरे इबादत गाह करीब में थे उसको नहीं तोड़े और आज तक वो नहीं बनी। कुछ दिन पहले नारायणपेट में जो इबादत ये आपके आशुर खाना इसको हटा दिया गया, फिर आपके एक खाना मस्जिद अंबरपेट आपके सामने है जी। अब मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये जो मस्जिदों को शहीद किया गया ये कोई गलतफहमी से नहीं शहीद किया गया। जैसा चीफ मिनिस्टर बयान दे रहे हैं और चीफ मिनिस्टर की बयान की कुछ लोग तायीद कर रहे हैं, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में जमात इस्लामी हिंद एक पार्ट एंड पार्सल है और हमारे यहाँ मलिक मोहतशिम अली खान साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर है। मलिक मोहतशिम अली खान साहब जब मस्जिद टूटी एक खाना मस्जिद तो एक बयान नहीं दिए, वक्फ बोर्ड के मेंबर रहते हुए प्रोटेस्ट बयान देना था, वक्फ बोर्ड से इस्तीफा देना था, इन्होंने नहीं किया। अमजदुल्ला खान साहब यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे वक्फ बोर्ड का कितना किरदार आप इसमें देख रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनता आप बोलिए? जो भी रूलिंग पार्टी रही थी, कांग्रेस, टीडीपी, अब मौजूदा टीआरएस। तो अब जो सलीम साहब हैं वो टीआरएस के रुकन हैं, तो उनको जो है एक गिफ्ट किया गया है। तो आप वक्फ बोर्ड से कैसा उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड कैसा जा सकता है? बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड के अराकीन जो है या तो टीआरएस के मेंबर रहते हैं या टीआरएस के सिंपैथाइजर है ये लोग। अब वक्फ बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट है। 6 माह और इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई? जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ये सबको रोड पर आना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने जाके धरना देना पड़ेगा। जितने इनको तायीद किए थे चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन में, ये सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ये लोग जब तक मस्जिद दोबारा उधर नहीं बनती, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की तामीर नहीं होना, उसी मुकाम पर ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ये लोग कातिल हैं मस्जिद के। मस्जिद को शहीद करने में जितना चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है उतने ही ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनकी तायीद की थी। आपने एक रिपोर्ट भी जो है वो दायर की है, उसमें किन किन लोगों को बनाया गया है? हमने ये कहा है कि ये पूरा मस्जिद को तोड़ने का कॉन्स्पिरेंसी जो है प्रगति भवन में हुई है। चीफ मिनिस्टर को A1 बनाना चाहिए, A2 R&B के कंट्रैक्टर्स को बनाना चाहिए, R&B की ऑफिस को, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ और तमाम अराकीन को इसके अंदर मुलजिम करार देना चाहिए। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो हम जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके अंदर FIR डाल के इसके अंदर जब तक दोबारा मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं बनती है वो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की काम को रुकवाएंगे हम इंशाल्लाह। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की बदलने की भी बात जो है वो कही जा रही है कि अब उनके बदलने का भी वक्त आ गया है, किसी और काबिल शख्स को ये ओहदा दिया जाए। इस बारे में आपके ख्यालात? आप देखिए मैडम, आप किसी को भी बिठाइए, कितने ही ईमानदार इंसान को लाकर वहाँ पर बिठाइए, अगर कल के दिन मैं भी अगर अमजदुल्ला खान जाकर वहाँ पर बैठा ना तो मैं नहीं काम कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ का पूरा अमला जो है वक्फ बोर्ड का रिमोट कंट्रोल से चलता है। चेयरमैन बिल्कुल एक डम्मी पोस्ट है। वहाँ का सीईओ जो है, जब तक वक्फ को कमिश्नरेट पावर्स नहीं दिए जाएंगे, जब तक वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनेगा, जब तक गवर्नमेंट के सिग्नल से बाहर नहीं निकलेगा, वक्फ बोर्ड कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। आप बताइए क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अराकीन जाके अंदर देख सकते? क्या बताइए आप? कल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब बयान दिए कि कुछ मलबा गिरने से कुछ हिस्सा टूटा, 48 आवर्स हो गए, हम खुद दावत। जी, हमारे साथ वक्फ बोर्ड के मेंबर मलिक मोहतसिम खान साहब भी मौजूद हैं। मोहतसिम साहब, लगातार आप तमाम चीज़ों को सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी जी, आपकी बात आवाज आ रही है। जी, ये जो मसला है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए जी। जो कुछ सेक्रेटेरिएट के हाथे में मस्जिद को तोड़ने का वाकया हुआ है, तोड़ दिया गया है, इसकी सख्त मजम्मत की जाती है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। और हम मुतालबा करते हैं कि उसी जगह पर मस्जिद तामीर होगी
اور اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے حکومت مدد نہ کرے تب بھی تلنگانہ کی مسلم عوام اس مسجد کی تعمیر کر سکتے ہیں. جی جی. اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ کی جو بات ہے، وقف بورڈ کو جو بات ہمارے دوست بیان کر رہے ہیں کہ جب تک جوڈیشل پاور نہیں ملیں گے، اس کو کمشنریٹ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، وقف بورڈ کی کارکردگی مؤثر نہیں ہو سکتی ہے. جی جی. یہ تو مطالبہ بہت پرانا ہے جس کو لے کر ہم کر رہے ہیں. اب یہ بات کہ یہ یعنی فلاں حکومت نے کیا، فلاں حکومت نے کیا، میرے پاس ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. بالکل. کہ یہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ریاست میں بھی آزادی کے بعد سے جتنی حکومتیں آئی ہیں ان سب کا رویہ ایک جیسا رہا ہے. ایک پارٹی دو پارٹی کا مسئلہ نہیں. ٹھیک. جہاں تک ہم جیسے لوگ ہیں وہ پارٹیوں کی اس لیے تائید کرتے ہیں کہ فرقہ پرستی کو روکا جائے. جی جی. فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے اور فرقہ پرست پارٹیوں کو روکنے کے لیے کبھی ہم کانگریس کے ساتھ بھی رہتے ہیں، کبھی ہم تلگو دیشم کے ساتھ بھی رہتے ہیں، کبھی ہم TRS کے ساتھ بھی رہتے ہیں. جی جی. لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرقہ پرست قوتوں کو روکنا چاہتے ہیں. جو کچھ مسجد کے معاملے میں ہوا ہے وہ غلط بات ہے. اور اگر حکومت یہ بیان نہ دیتی کہ ہم وہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو نہیں بناتے، تو کل ہم اس کو یہ وقف بورڈ کی ممبرشپ کیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اس کے لیے سڑکوں پر آ ہی جاتے تھے. جی جی. لیکن حکومت نے یہ کہا ہے، اس لیے میں حکومت سے یہ خواہش کروں گا کہ جو کچھ حکومت نے بیان دیا ہے، پریس میں بات آئی ہے، CM صاحب کی طرف سے بات آئی ہے، ہائی کورٹ میں کیس ڈال دیے ہیں لوگ، پورا کام پر بھی ڈالے ہیں، مسجد کے بارے میں بھی ڈالے. جی جی. تو جو کچھ حکومت نے بیان دیا ہے وہ تحریری طور پر کورٹ میں داخل کر دیں کہ ہم اسی مقام پر وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں. جو کچھ بھی تکلیف ہوئی ہے اس پر یہ جی بالکل. ملک معتصم خان صاحب، آپ نے بہت ہی بے باکی سے اور بہت سچائی کے ساتھ اپنی تمام تر جو بات تھی وہ یہاں پر رکھی ہے کہ کسی بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس وقت یہاں ہم ایک چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ لانا چاہیں گے. ابھی ہم وقف بورڈ کے رکن کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہے ہیں، کیا مستقبل میں ہم وقف بورڈ کے صدر کی حیثیت سے بھی ملک معتصم خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ تب آپ کی ذمہ داریاں شاید زیادہ بڑھ جائیں گی. یہ سب باتیں وہ یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں جو ہمارے دوست نے بیان کی ہے کہ اصل مسئلہ ایک آدمی کا نہیں ہے، ورک کلچر کا ہے اور لوگوں کو اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر سب مل کر کام کرنے کا ہے. بالکل. جب تک ورک کلچر نہیں بدلے گا اور صرف وقف بورڈ کے ممبرز کا یا وقف بورڈ کے عملے کا نہیں، جی جتنے بھی ہمارے قوم و ملت کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ وقف بورڈ کا مسئلہ لے کر آتے ہیں، وقف بورڈ کا مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے، اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. ہمارے سماج میں، ہمارے حیدرآباد میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جی جو بار بار وقف کی جائیدادوں کی دہائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقف کا تحفظ کریں گے. وہ وقف کا تحفظ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اور یہ عملی طور پر دکھائی بھی دے رہا ہے. سید نظام الدین صاحب، جس طرح سے ابھی ہم سن رہے ہیں کہ سیاست سے اوپر اٹھ کر آگے آنا ہوگا، کیا کچھ کانگریس کا لائے عمل؟ دیکھیے، ہم تو یہی بولیں گے کہ جو ہے جس طرح ملک معتصم صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے یہاں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ مسئلہ ہے مسجد کا. جس جگہ پہ مسجد تھی اسی جگہ پہ مسجد کو دوبارہ گورنمنٹ کو بنانا چاہیے. جس طرح سے وہ ڈیمولیشن ہوا ہے ان کے اوپر جو ہے کرمنل کیسز بھی رجسٹر ہونا ضروری ہے. ہم کسی قیمت میں خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں جب تک جو ہے جو مسجد کو جہاں پر تھی وہیں پر بنایا نہیں جائے گا. جی تو اپنی اس خاص پیشکش میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. ہم اپنے تینوں مہمانوں کا، امجد اللہ خان صاحب کا، ملک معتصم خان صاحب اور ساتھ ہی ساتھ سید نظام الدین صاحب، تینوں کا ان کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور مزید اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوگی اس سے بھی ہم اپنے تمام ناظرین کو روبرو کرواتے رہیں گے. تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں news18urdu.com پر. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. آداب.